Hello students and welcome to the channel SNW Physics classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics classes. This is the very important topic of class 10 physics, that is the second part of the chapter, electricity. So the topics to be discussed today in the video are Ohm's law, resistance, factors affecting resistance, resistivity, difference between resistance and resistivity. So let's begin with the topic. The very first topic is Ohm's law. It states that at a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end. ठीक है, let it be wire. यहाँ पे हम लोगों ने wire को consider किया है. So it says that the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its end. ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, ये इसके एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा that is directly proportional to the current flowing in the conductor. ठीक है, potential difference is directly proportional to the current flowing in the conductor. Here we can see if I is the current flowing through the conductor and V is the potential difference across its end, then according to Ohm's law, I is directly proportional to V, or we can write V is directly proportional to I. So to remove this sign of proportionality, ठीक है, इस proportionality के sign को remove करने के लिए we add a constant here. जैसा कि हम लोग पहले भी करते हैं ये चीज कि अगर हम लोगों को proportionality के sign को remove करना है, then we have to add one constant, and this constant is known as resistance. This R is a constant and it is known as resistance. We can also remember Ohm's law by using Ohm's law triangle. Okay, here we can use Ohm's law triangle. Here VIR ये एक हमारा ट्रायंगल है और इसमें हम लोग इसको याद रख सकते हैं. कैसे याद रखेंगे इसको? यहाँ पे V, यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल किया है V को. ओके, यहाँ पे जो V है, if we have to find the value of V, then we have to multiply I into R. ठीक है, यहाँ पे तीन वैल्यू है, तीन वैल्यू की रिलेशन है, रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे शो करते हैं इन ओम्स लॉ. तो इन तीनों वैल्यूज को हम लोग कैसे निकालेंगे? वी कैन जस्ट रिमेम्बर बाय यूजिंग ओम्स लॉ ट्रायंगल. ठीक है, टॉप पे हम लोगों ने V रखा है, सेकेंड एंगल पे हम लोगों ने I और थर्ड वाले एंगल को हम लोगों ने R लिया है. ठीक है, सो V इक्वल टू IR. फर्स्ट केस में जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, मीन्स हमारा जो एक्सप्रेशन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R. नाउ इन सेकेंड एक्सप्रेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I, करंट. तो करंट को हम लोगों ने क्या किया है? V बाई R. ऐसे ऐसे हम लोगों को दिख रहा है, इट इज V इज डिवाइडेड बाई R. सो इट इज easy to get the formula here. Now in third case we have to find out the resistance. ठीक है, थर्ड केस में हम लोगों को रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस वी हैव टू डिवाइड V with I. ठीक है, V को जब हम लोग I से डिवाइड करेंगे, then we can find out the value of resistance. Ohm's law is that at a constant physical temperature, or we can say at a constant physical condition, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the wire or across the end of the conductor. ठीक है, किसी कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पे या तो टेम्परेचर प्रेशर है जो, उसको अगर हम लोग कांस्टेंट मेंटेन कर ले, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को, तो जो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मींस जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो करंट फ्लो कर रहा है पूरे वायर में या पूरे कंडक्टर में. ठीक है, in short or mathematically we can write I is directly proportional to V, or V is directly proportional to I. Now we will see some conclusions or the concepts related to Ohm's law. Now we will see the concepts related to Ohm's law. So
very first we have to see here is that current is directly proportional to potential difference. Current किसके proportional है? It is proportional to potential difference. Second concept we have to remember is that the current is inversely proportional to the resistance. Yes, we can see that V is equal to IR, ठीक है, IR है. So I is equal to V by R. By cross multiplying it, we can write here V by R. ठीक है, V by R हम लोगों ने लिखा. Then here clearly we can see that current is inversely proportional to the resistance. Current जो है वो resistance के inversely proportional है. Current is directly proportional to the potential difference. It is directly proportional. Directly proportional means अगर हम लोग current की value को increase कर रहे हैं तो potential difference भी increase करेगा. And if we are increasing the value of current, then resistance will decrease. Inversely proportional का मतलब उसके opposite जाएगा और directly proportional का मतलब है उसके साथ साथ चलेगा. ठीक है, directly proportional means if current increases, potential difference increases. If current increases, then resistance decreases. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि करंट को इंक्रीज हम लोगों ने किया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज किया. करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इसका मतलब करंट को हम लोगों ने इंक्रीज किया देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. नाउ द थर्ड पॉइंट इज if the potential difference across the end of the conductor is doubled. ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसी चीज को हम लोग elaborate कर रहे हैं यहाँ पे और अच्छे तरीके से इस पॉइंट को समझेंगे. If the potential difference across the end of the conductor is doubled, अगर हम लोगों ने potential difference को double कर दिया, then current flowing through it also get double. अभी हमने कहा था कि V is directly proportional to I. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को किसी कंडक्टर में डबल कर दिया तो करंट भी डबल होगा. एंड इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, अगर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया देन करंट विल आल्सो गेट हाफ्ड. ओके, जैसे हम लोग करंट को करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सो यहाँ पे अगर हम लोगों ने करंट को डबल किया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोगों ने हाफ किया तो करंट भी हाफ हो जाएगा. Next point is if the resistance is doubled, ठीक है, resistance को अगर हम लोगों ने double कर दिया then current get halved. As we see that resistance is inversely proportional. अगर हम लोगों ने current को double किया तो resistance जो है वो half हो जाएगा. And if resistance is half, current get doubled. ठीक है, इसका opposite होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस उसमें जो चेंजेस होंगे वो ऑपोजिट होगा. एक इंक्रीज किया तो दूसरा डिक्रीज करेगा. हियर वी कैन क्लियरली सी इफ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट हाफ एंड इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ देन करंट गेट डबल. Our next point is now we have some conclusion related to Ohm's law. We can conclude that current in a given conductor depend on two factors. Here we can see the first factor is potential difference across the end of the conductor. जब भी कोई कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है then it depends on two factors. means पहला फैक्टर हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके एंड्स पे. ठीक है, किसी भी कंडक्टर के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पे डिपेंड करता है कि करंट कितना फ्लो करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. सेकंड, वो जो करंट फ्लो कर रहा है वो दूसरी चीज पे क्या, किस चीज पे वो डिपेंड होगा, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, द करंट कैरिंग इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस. ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करेगा और जो रेजिस्टेंस है वायर की उस पर डिपेंड करेगा. Our next topic is the graph between V and I. ठीक है, अगर हम लोग V और I की ग्राफ को यहाँ पे ले लेते हैं तो as we know that V is directly proportional to the current. ठीक है,
पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो जब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मींस इफ द करंट इज इंक्रीजिंग, वोल्टेज इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो इस केस में जो हम लोगों को ग्राफ मिलेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ कैसा मिलेगा हम लोगों को? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और जब भी हम लोग V और I की ग्राफ ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, then we will get a straight line as R is constant and current increasing, also voltage increasing, because they are directly proportional. As soon as we increase the current, voltage is also increasing. So our next topic we are going to deal here is resistance. यहाँ पे हम लोगों ने एक constant अप्लाई किया था, वहां पे एक constant को हम लोगों ने वैल्यू में रखा था, V is equal to Ri. Now we will know what is that R. Resistance is the property of conductor due to which it opposes the flow of current through it. ठीक है, रेसिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से है वो करंट को अपोज करे। मींस इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट के पाथ में जो ऑब्स्टेकल होता है, जो फोर्स उसे अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of current is called resistance. Its SI unit is ohm. ठीक है, रेसिस्टेंस की SI यूनिट है ohm and it is represented by omega. ये जो ऐसे ये साइन है, this is the sign of omega. It is a Greek letter and it is called omega. Now we can say resistance is equal to potential difference by current. ठीक है, वहां पे हम लोग ने क्या देखा, R is equal to V by I. Okay, R is equal to V by I. We can find out the formula here. ठीक है, resistance is the property of conductor due to which it opposes the flow of current through it. ठीक है, किसी कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट के फ्लो को वो अपोज करे। ओके, और इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज 1 ओम। ठीक है, 1 ओम क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। The resistance of a conductor such that when potential difference is of 1 volt, ठीक है, V यहाँ पे 1 volt है, is applied to the end of the conductor। यहाँ पे अगर किसी कंडक्टर के एंड पे हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का रखा है और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है that is also 1 ampere, then that resistance is called 1 ohm. उस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस होगा that is 1 ohm. We can write 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. Now here we have one question. Potential difference between 2 points of wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Let it be a wire. यहाँ पे हम लोगों ने एक वायर को कंसीडर किया है and potential difference means V is 0.1 वोल्ट। ठीक है, 0.1 वोल्ट यहाँ पे हम लोगों की पोटेंशियल डिफरेंस है एंड द करंट कैरिंग बाय द वायर इज 2 एम्पियर। ठीक है, करंट कितना कैरी कर रहा है ये वायर, दैट इज 2 एम्पियर। वी हैव टू फाइंड आउट द रेसिस्टेंस, सो वी हैव टू अप्लाई वन फॉर्मूला। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला को देखा था। यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग ट्रायंगल देखें, ओम्स लॉ ट्रायंगल, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि if we have to find out the value of resistance then we will apply this formula। ठीक है, अगर हम लोग को रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला, थर्ड वाले ट्रायंगल की फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। मींस R is equal to V by I, means we have to divide these values। Now we will see what is the solution of this problem। So the solution is that V is equal to 0.1 volt। ठीक है, V कितना दिया हुआ है 0.1 volt, I is 2 ampere, I यहाँ पे 2 ampere दिया है। We have to find out the value of resistance, so R is equal to V by I according to this triangle। ठीक है, now on calculating this value we will divide 0.1 by 2 ampere। ठीक है, 0.1 volt by 2 ampere, so R is equal to 0.05 ओम।
ठीक है, R हमारा रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट वायर, जो वायर रेसिस्टेंस ऑफर करेगी इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इट इज एन ऑब्स्टेकल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस इज एन ऑप्टिकल विच इज which opposes the flow of current. So the resistance offered by the wire is 0.05 ohm. यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन के बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू ओम्स लॉ। सेकेंड क्वेश्चन इज अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी। ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। सर्किट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा जस्ट गो फॉर इट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अ रेसिस्टेंस ऑफ 60 ओम। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को दो वैल्यूज मिल गई, यहाँ पे V इज इक्वल टू 24 वोल्ट एंड R इज इक्वल टू 60 ओम। ठीक है, R जो है हमारी कितने है, हमारा जो R दिया है वैल्यू दैट इज 60 ओम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट। ठीक है, अगेन वी विल यूज द ओम्स लॉ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से ओम्स लॉ के ट्रायंगल को यूज करेंगे। सेकेंड ट्रायंगल में हमारा शायद ये फॉर्मूला मिल जाए, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, आई की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। सो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोगों ने डिवाइड कर देना। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। So the potential difference here given is 24 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 24 वोल्ट है और रेसिस्टेंस जो है वो 60 ओम है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। करंट की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे निकालनी है। सो वी विल डिवाइड 24 बाई 60। ठीक है, 24 बाई 60 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। सो द करंट फ्लोइंग इन द वायर इज 0.4 एम्पियर। यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल इफ वी नेग्लेक्ट द रेसिस्टेंस। ठीक है, जो कनेक्टिंग वायर्स है, बहुत सारे वायर्स से कनेक्टेड है वो पूरा सर्किट, तो उस जो वायर है उसके इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट नेग्लेक्ट करके चले तो उसमें हम लोगों को जो वैल्यू मिली है दैट इज 60 ओम। इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग शायद फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 12th में। So our next topic is factors affecting resistance of the wire. ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वायर के रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। नाउ वी विल सी दैट द फर्स्ट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, वायर की जो लेंथ होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। एज सुन एज वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, जितना हम लोग लेंथ बढ़ाएंगे वायर की रेसिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। इट मीन्स कि हम लोग जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेते हैं अपने घरों में तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे नियर बाय पोल होता है, जो सबसे नजदीक में पोल होता है, उससे हम लोग कनेक्शन लेना प्रेफर करते हैं। बिकॉज एज सुन एज वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर it increases the resistance and resistance is the obstacle in the flow of path of current। ठीक है, तो जैसे जैसे रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा करंट जो है वो डिक्रीज करेगा। सो हम लोग लेंथ ऑफ वायर जो होता है वो बहुत शॉर्ट रखते हैं while taking the electrical supply। Next factor which is affecting the resistance of the wire is area of cross section of the conductor। ठीक है, area of cross section जो होता है that is inversely proportional to the resistance। ठीक है, जितना एरिया जो है वो ज्यादा होगा रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, area of cross section of conductor is inversely proportional as soon as we increase the area of cross section the resistance of the wire decreases। The third point is nature of the material of the conductor। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल को हम लोग ले रहे हैं। तो अगर हम लोग कॉपर की मटेरियल को लें देन इट इज लेस रेसिस्टिव, और अगर हम लोग आयरन या फिर किसी और भी मेटल की ले लें तो इट इज मोर रेसिस्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस इज directly proportional to the temperature। Resistance is directly proportional to the temperature। As soon as the temperature increases the resistance
ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे हम लोग समर सीजन में देख सकते हैं कि हमारी जो वोल्टेज होती है वो बहुत लो होती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, जो एनवायरनमेंट की जो टेम्परेचर होती है, हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर जो होती है वो इंक्रीज की हुई रहती है, और उस कंडीशन में जब हमारी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी तो वायर की रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी और हमारा जो करंट होगा दैट विल डिक्रीज। ओके, इसलिए हम लोग समर सीजन में देख सकते हैं कि वोल्टेज की बहुत प्रॉब्लम होती है, करंट जो होता है बहुत कम हमारे घरों में सप्लाई हो पाता है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। हियर वी कैन सी द कंडक्टिंग वायर। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये कंडक्टिंग वायर है और इस वायर में फर्स्ट विच अफेक्ट द रेसिस्टेंस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जितना ज्यादा हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया रखेंगे उतना कम रेसिस्टेंस होगा, एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज inversely proportional to the resistance. Next topic in next one is resistivity. It also based on the nature of the conducting wire. And third one is length. Length is directly proportional to the resistance. As soon as we increase the length of the wire, resistance also increases. So we have to put the length of the wire as short as possible. We have to keep the area of cross section as thick as possible. लेकिन हम लोग एक फ्यूज के केस में हम लोग ऐसा नहीं करते। फ्यूज का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है बहुत ही कम रखते हैं, so that it cannot damage the अप्लायंसेस को डैमेज करने से पहले वो क्या हो जाए, फ्यूज मेरा डैमेज हो जाए, फ्यूज जो है वो एक्सप्लोड करे, ना कि हमारा अप्लायंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मटेरियल को भी हम लोग कंसीडर करते हैं while taking the resistance of the wire, or while calculating the resistance of the wire, we also see the nature of the material of the conductor. And the fourth one is temperature. as जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज formula to calculate the resistance. Now we will get the formula to calculate the resistance. It has been found by experiment that resistance is directly proportional to the length of the wire. ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे वायर हम लोग जनरली यूज करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वायर अगेन एंड अगेन। सो द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अभी हम लोगों ने देखा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लेट इट बी इक्वेशन 1। सेकंड फैक्टर इज resistance is inversely proportional to the cross section of the conductor. ठीक है, inversely R is inversely proportional to the area of cross section. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया what are the factors affecting the resistance. Next, on combining these two equations, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोगों ने कंबाइन किया, then we can write R is proportional to L by A. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं because we combine these two equation, R is proportional to L and R is also proportional to A. Now we get the formula that is R is equal to rho L by A. What is rho here? Here rho is a constant. ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले भी देखे हैं कि if we have to remove the sign of proportionality, then we have to add one constant here, and this constant is rho and it is known as resistivity. Here rho is a constant of proportionality which is called resistivity. Rho जो है वो proportionality constant है and it is called resistivity. Next is resistivity. Now we will see what is resistivity. The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of the rod at that substance. ठीक है, resistivity जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल हम लोग उसको बोल सकते हैं उस सब्सटेंस की, उस रॉड की जिसकी जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर हम लोग कोई रॉड यहाँ पे ले लेते हैं जिसकी जो लेट इट बी रॉड हियर, पहले हम लोग इसे ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद समझेंगे इसे। इट इज अ रॉड और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज 1 मीटर। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे हम लोगों ने इसे 1 मीटर का रखा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर, लेंथ जो है दैट इज 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो रेसिस्टिविटी होगी दैट विल बी इक्वल टू, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रो। ठीक है, उस कंडीशन में जो है रेसिस्टिविटी जो है वो रो के इक्वल होगी बिकॉज
R is equal to रो L by A, अगर हम लोगों ने यहाँ देख लिया R is equal to रो L by A और L is 1, A is also 1, then in that case resistivity is numerically equal to the resistance of the wire. It depends on the nature of the substance and टेम्परेचर. इसमें दो चीजों को यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं. रेसिस्टेंस जो होता है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है. दैट इज लेंथ ऑफ द वायर, थिकनेस, क्रॉस सेक्शनल, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया, nature of the substance and temperature. But resistivity do not depend on the length and thickness. resistivity को इन दोनों length और thickness area of cross section से कोई लेना देना नहीं है. बस यहाँ पे इसको क्या कंसिडर करना है, that what is the nature of the substance and temperature. ठीक है, जिस टेम्परेचर पे करंट फ्लो हो रहा है इससे इसको मतलब है. बाकी चीजों से, इसे दो चीजों से मतलब नहीं है कि लेंथ कितनी है वायर की और थिकनेस कितनी वायर की, इससे रेसिस्टिविटी को कोई लेना देना नहीं है. Now we will see difference between resistance and resistivity. ठीक है, बहुत टाइम से ये कंफ्यूजन चल रहा है कि what is resistance, what is resistivity. तो हम लोग यहाँ पे कुछ differences को देखेंगे कि what is the main difference between resistance and resistivity. So the very first difference is the property of the conductor due to which it opposes a flow of current through it is called resistance. resistance की definition अगर हम लोग देखें कि ये एक property है जिसकी वजह से जो है वो current को oppose करता है कोई भी conductor, that is resistance. And what is resistivity? The resistivity of a conductor is resistance of the conductor of unit length and unit area. ठीक है, resistivity क्या है? It is numerically equal to the resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section. ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा इसे कि रेसिस्टिविटी क्या है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस, इट इज द रेसिस्टेंस ओनली. लेकिन उस कंडीशन में क्या है कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ जो है वो यूनिट होनी चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 होना चाहिए. ठीक है, सेकेंड difference we can see that SI unit of resistance is ohm. ठीक है, SI unit of resistance is ohm, it is represented like this, and SI unit of resistivity is ohm meter. ठीक है, SI unit of resistivity is ohm meter. Third difference is resistance of a conductor depend on its length and area of cross section. ठीक है, resistance किस चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे. बट resistivity do not depend on length and area of cross section. area of cross section पे depend बिल्कुल भी नहीं करता resistivity, and area of cross section पे भी, area of length पे भी depend नहीं करता और area of cross section पे भी ये depend नहीं करता. So our next topic again we have is resistivity of some common substances at 20 degree. ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग देखेंगे व्हाट आर द रेसिस्टिविटीज ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस. कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए हैं. लेट अस सी व्हाट आर दे. सो मटेरियल एल्यूमिनियम, रेसिस्टिविटी जो है वो 10 से 800 ओम मीटर तक चला जाता है इसका. सैंड की जो रेसिस्टिविटी है दैट इज 60 to 1000. ठीक है, जितना ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी उतना कम कंडक्टिविटी होगी. ठीक है, जिस सब्सटेंस की रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उसकी कंडक्टेंस जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बहुत कम करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्ले 1 to 100 ohm meter. ग्राउंड वाटर इफ इट इज फ्रेश देन 10 to 100 ohm meter. सैंडस्टोन 8 to 4 into 10 to the power 3, यानी बहुत ज्यादा हाई रेसिस्टिविटी है इसकी. शेल 20 to 2 into 10 to the power 3. ओम मीटर यहाँ पे रेसिस्टिविटी कैसा यूनिट है, सो वी विल ऑलवेज यूज ओम मीटर. लाइमस्टोन 50 to 4 into 10 to the power 3 एंड ग्रेनाइट 5000 to 1 lakh ओम मीटर. ठीक है, ये सारी जो रेसिस्टिविटी है कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की है. ये बस हम लोग अपने इंफॉर्मेशन के लिए रखते हैं, एग्जाम में इस तरह की नहीं आते. अगर क्वेश्चन देता भी है रेसिस्टिविटी से रिलेटेड तो उसकी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज वन numerical. ठीक है, now we will solve one numerical based on the resistance and resistivity. Okay, the copper wire of length 2 meter, the length of the wire is 2 meter, area of cross section is 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square, and resistance is given 2 into 10 to the power minus 2 ohm. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. So the solution is
Here it is given resistance 2 into 10 to the power minus 2 ohm. Area of cross section is 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square and length is 2 meter. ठीक है, सारी वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट करेंगे. वी हैव द फॉर्मूला R is equal to rho L by A. ठीक है, यहाँ पे R equal to rho L by A. तो इससे हम लोगों ने रेसिस्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए इस रो की वैल्यू निकाली है. R और A को हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिया है और डिवाइडेड बाय L. Okay, so R is equal to 2 into 10 to the power minus 2 ohm. A is equal to 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square and length is given as 2 meters. ठीक है, तो अगर हम लोगों ने ये 2 और ये 2 को माइनस कर दिया, मीन्स कैंसिल आउट कर दिया, देन वी विल गेट 1.7 into 10 to the power minus 8. हाउ माइनस 8? minus 2 minus 6 दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया तो हम लोगों को वैल्यू मिली -8. सो द रेसिस्टिविटी ऑफ दैट कॉपर वायर इज 1.7 into 10 to the power minus. If you have any problem, any doubt related to the video, or you want any topic to be discussed on my channel, please comment in the comment section or you can write on my Gmail account which is given in the description box. Thank you very much for watching.